جیسے محرم کے موقع سے آپ لے لیجئے، اصل چیز تو نماز، روزہ، حج و زکات ہے، تلاوت ہے، بزرگان دین کے لیے ایصال ثواب ہے۔ حسین اعظم نے قربانی دی، اپنا سب کچھ لٹایا، کنبہ لٹایا اسلام بچانے کے لیے۔ تو ہم اس محرم کی 10 تاریخ کو سجدہ بڑھا دیں، تلاوت بڑھا دیں، حسین اعظم کے ذکر کی محفل منعقد کریں، ان کا چرچا کریں، ان کے صبر کا چرچا، ان کے ایثار کا چرچا، ان کی استقامت کا چرچا، دین کے لیے سب کچھ لٹانے کے جذبے کا چرچا کریں تاکہ ہمیں بھی وہاں سے نور ملے۔ مگر مسلمانوں نے جو اصل کام چھوڑ کر کے اس حسین کی قربانی کو یاد کو دوسری شکل دے دی ہے۔ وہ شکل کالی پٹی لگانا، ڈی جے بجانا، ڈھول بجانا، مرثیہ گانا، جھڑنی گانا، ماتم کرنا، سر کے بال نوچنا، آگ لگا کے اس پہ کودنا، اس آگ میں جا کے گھس جانا اور صاحب ماتم کرتے ہوئے خون بہانا، یہ ہندوانہ رسم و رواج ہے، یہ جاہلانہ رسم و رواج ہے۔ یہ اسلام کی آمد سے پہلے کے جہلا ایسا کرتے تھے، اور کالی پٹی پہننا، سوگ منانا، یہ جاہلوں کا کام ہے۔ میں تو اکثر کہا بھی، میں 1 مہینے سے ہی پیغام دے رہا ہوں، تو جس کا حسین مر گیا ہو وہ ماتم کرے، جس کا حسین فرضی ہو، جس کو حسین کی ایک شکل انہوں نے بنا لی ہے، جس کا حسین فرضی ہو، فرضی کربلا، فرضی امام باڑہ، فرضی رسم و رواج، تو جس کا حسین فرضی ہے وہ منائے فرضی کربلا، وہ بنا لے فرضی امام باڑہ، وہ اپنے سر پہ پٹی باندھ لے، وہ آگ میں کودے، وہ اپنے بدن کو چھری سے زخمی کر لے۔ جس کا حسین فرضی ہے، جس کا حسین مر گیا ہے، وہ منائے تیجا، وہ منائے اس کا 40واں، جس کا حسین مر گیا ہو۔ جس کا حسین فرضی ہے وہ تیجا منائے، وہ 40واں منائے، وہ کالی پٹی پہنے، وہ آگ میں کودے، وہ بدن کو زخمی کرے۔ اصل حسین کے قاتل اسی کے باپ دادا تھے، اور اس قتل پہ پردہ ڈالنے کے لیے یہ سر پہ دھول ڈال رہے ہیں، یہ ماتم کر رہے ہیں، یہ اپنے بدن کو زخمی کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے کہ جہنم کی آگ میں تو جلے گا، وہاں یزید کے ساتھ میں، اور تم نے مصطفیٰ کے شہزادے کے ساتھ گستاخی کی ہے، اور جب تک تو زندہ رہے، تیری نسل زندہ رہے، اسی طرح اپنے بدن کو زخمی کرتے رہے۔ یہ دنیا کی سزا ہے، اور آخرت کی سزا ہے جہنم کی خطرناک آگ۔ تو جس کا تیجا، چہارم، 40واں، کالی پٹی، سوگ وہ منائے جس کا حسین مر گیا ہو۔ مگر میرا حسین، علی کا بیٹا حسین، فاطمہ کا شہزادہ حسین، موسیٰ کا مصطفیٰ حسین، ہم شبیہ پیغمبر حسین، جو اوریجنل حسین ہے، وہ حسین پاک تو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے تو قرآن کی زبان میں وہ زندہ ہو گئے۔ تو جو زندہ ہو گئے اس کا ماتم کیسا، کالی پٹی کیسی، اس کا مرثیہ کیسا؟ تو میرا حسین زندہ ہے، تو جو حسین ماتم کا وشے نہیں ہے، حسین فخر کا ایشو ہے کہ رہنما ہو تو ایسا، یودھا ہو تو ایسا، فائٹر ہو تو ایسا، جس کا نبی لاجواب، نبی کا نواسا بھی لاجواب، نبی نور علی نور ہے، نواسا بھی نور ہے۔ جب چرچا حسین کا ہوگا، جینے کا حوصلہ، جینے کا شعور کا نور ملتا رہے۔ بابا نعرہ تکبیر، پاکی زندگی سنو، نعرہ رسالت۔ لوگوں نے اس کی شکل بدل دی۔ امام باڑہ، سرنی لے جا کے دینا، فاتحہ پڑھنا، ٹٹی گھیرنا، کیلا گاڑنا، جیسے غیر مسلم لوگ کیلا گاڑتے ہیں اسی طرح سے یہ بھی کیلا گاڑنا شروع کر دیا۔ جیسے وہ لوگ اپنے ہاتھ سے کچھ بناتے ہیں، گھماتے ہیں، چندہ کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، پھر لے جا کے پانی میں بھسا دیتے ہیں، اسی طرح ہماری بھی لوگوں نے ان سے سیکھ لیا۔ اپنے ہاتھوں سے کچھ بنانا ہے، دلدل بنانا ہے، 2 قبر بنانی ہے، گھمانا ہے، چندہ کرنا ہے، اور اس کے لے کے افیم، چرس، شراب، تاڑی پینا ہے، اور پھر محرم کی 10 تاریخ کو فرضی کربلا میں بھسا دینا ہے۔ کیوں شرم نہیں آتی کہ جو کام ہندوؤں کے کام سے میل کھاتا ہو، جو کام مشرکوں کے کام سے میل کھاتا ہو، جو کام جاہلوں کے کام سے میل کھاتا ہو، وہ کام مسلمان کرے گا؟ منع کرے اپنے بچوں کو، منع کرے اپنے سماج کے لچے، لفنگے، چوروں، ڈکیت اور شرابی چرسیوں کو منع کرے۔ یہ چرسی کام کرتا ہے، بدنام اسلام ہوتا ہے۔ یہ چرسی، یہ ڈھونگی، یہ شرابی ناچتے اور گاتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، اور مسلم سماج بدنام ہوتا ہے، اور وہ مسکراتے کہتے ہیں ہاں ہاں تم میری مذمت کرتا تھا، اور تیری ہی لوگ تو میری طرح ناچ رہے ہیں، اور تیرے بھی لوگ تو اپنے ہاتھ سے کچھ شکل بنا رہے ہیں، اس کو گھماتے ہیں، چندہ کرتے ہیں، تاڑی پیتے ہیں، پھر بھسا دیتے ہیں، تو تیرا کام تو میرے کام کی طرح میل کھا گیا۔ تو تمہاری وجہ سے دنیا کے کئی 100 کروڑ مسلمانوں کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ اس لیے تمام خرافات کو ختم ہونا چاہیے، اور جو بنیادی چیز ہے اس بنیادی چیز پہ فوکس کرنا چاہیے۔ بنیادی چیز ہے نماز، بنیادی چیز ہے روزہ، بنیادی چیز ہے حج، بنیادی چیز ہے زکات، بنیادی چیز ہے آداب و اخلاق، یعنی اچھا اخلاق، جس کے بارے مصطفیٰ کہتے ہیں انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ مصطفیٰ کہتے ہیں I have been sent، میں بھیجا ہی گیا ہوں تاکہ میں اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچا دوں۔ یعنی اخلاق جسے کہتے ہیں کہ غمزدوں
के साथ मुस्कुरा के मिलना, दूसरों का काम आना, एक अच्छा बाप, अच्छी माँ, अच्छा भाई, अच्छी बहन, अच्छा शहरी, अच्छा पड़ोसी, अच्छा मुसाफिर, अच्छा दोस्त, एक अच्छा इंसान बनना जिससे कि दूसरों को हमसे फायदा पहुंचे, हमसे कोई कष्ट न पहुंचे। यही है अखलाक की चोटी, यही है अखलाक की पीक, यही है हाईनेस ऑफ मोरालिटी, यही है हाइट ऑफ मोरालिटी, यही है अखलाक की बुलंदी। इसी बुलंदी को पाए तकमील तक पहुंचाने मुस्तफा तशरीफ लाए हैं। हुजूर की जिंदगी से का मकसद है दुनिया के इंसानों को इंसान बना देना, उसे अखलाकमंद इंसान बना देना। आज जो लोग जानवर बन गए, भाई से दुश्मनी, बहन से दुश्मनी, माँ से दुश्मनी, बाप से दुश्मनी, पड़ोसी से दुश्मनी, संधी से दुश्मनी, दामाद से दुश्मनी, अपने कारोबार के साथी से दुश्मनी, अपने पड़ोस के दुकानदार से दुश्मनी, बस में चलते मुसाफिर से दुश्मनी। ये जो दुश्मनी 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 मुस्तफा से दूरियां जब से बढ़ गई है मुसलमानों की भी और दुनिया के इंसानों की भी, ये दुनिया नफरत से भर गई, नफरत की आग में जल रही है। अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक नफरत ही नफरत है। चल लुच्चे लफंगे चोटे कमीने वह हिंदुस्तान को भी जलाना चाहते हैं, नफरतों का कारोबार करना चाहते हैं, वह गन के सहारे दूसरों का वोट लेना चाहते हैं और फिर यहाँ के शरीफों को मारना चाहते हैं और जो नमाजी पाकीज़ा किस्म के लोग हैं इसे भगाना चाहते हैं। उन चोटों कमीनों का सपना कभी पूरा ना होगा। इसे एक कौम मुस्लिम, तू सजदा बढ़ा दे, तू इबादत बढ़ा दे, तू तिलावत बढ़ा दे, तू अपने रब से कुर्बत को बढ़ा दे। इन चोटों का सारा सपना साकार नहीं होगा। तू और अपने रब से करीब होता जाएगा, जन्नत भी करीब होगी, दुनिया की सल्तनत भी तेरे करीब होती चली जाएगी। उन चोटों का गम मत खा, उन खसीसों और रजीलों का गम मत खा। अखबार पढ़ के विचलित मत हो जा, अपना कैरेक्टर का जायजा ले। अगर गुनाह है तो मिटा दे, ज़िना है तो खत्म कर दे, शराब है तो पांव के नीचे रौंद दे, वरना तुझ में एक काफिर में क्या फर्क रह जाएगा। काफिरों के छोकरे भी गुटखा खाए और गुटखा खाए, छोकरीबाजी करें और शराब पिए और जैसे तैसे हो माल सिर्फ कमाए, और मुसलमानों का छोकरा भी शराब पी, ये भी गुटखा खाए, ये भी जोकरों की तरह बाल रखे, ये भी जोकरों की तरह कपड़ा पहने और जोकरों की तरह हराम हलाल जहां से हो माल चाहिए और मकान और गाड़ी चाहिए। फिर तुझ में और काफिर में क्या फर्क रहेगा? फिर तुम्हें इज्जत क्यों मिलेगी, रहमत क्यों नाजिल होगी, तुम्हें अल्लाह सल्तनत क्यों देगा? अल्लाह सल्तनत तुम जैसे लखेरों को नहीं देगा। मुस्तफा का सच्चा जो गुलाम होगा उसे भी पहले अल्लाह ने सल्तनत दिया है और कयामत तक वही फॉर्मूला रहेगा। जैसे माँ बाप अच्छे, औलाद अच्छी, उसी तरह जब मुस्तफा के गुलाम अच्छे होंगे तो जन्नत वहां मिलेगी, सल्तनत यहां मिलेगी। सल्तनत चोटों को अल्लाह नहीं देगा, सल्तनत कमीनों को अल्लाह नहीं देगा, सल्तनत जलीलों को अल्लाह नहीं देगा, सल्तनत छोटे दिल वालों को अल्लाह नहीं देगा। जिसको अपना पड़ोसी नहीं भाता हो, जिसको अपना रिश्तेदार नहीं भाता हो, जो गालियां सुन के मुस्कुराना नहीं जानता हो, जो दूसरों की तकलीफ को झेल कर अपने से आराम नहीं पहुंचाना जानता हो, जिसका दिल बड़ा नहीं हो, वह कमीने को अगर अल्लाह हाथ में तलवार दे दे वो कितनों को जख्मी करेगा, नाबीना के हाथ में गन दे दे वो न जाने कितनों की जिंदगी को तबाह कर देगा। तो इसलिए इंतजार है उस घड़ी का जिस दिन हम अखलाक का नमूना बन जाए, सच्चा पक्का मुसलमान बन जाए। इसलिए नेकों का चर्चा करना होगा, उनकी सुबह शाम को देखना होगा, उनकी जिंदगी का मुताला करना होगा, जिंदगी का मुताला होगा और इधर बदन में सुधार पैदा होगा। अखलाक जहां बुलंद होगी तो यहां सच्ची खुशी मिलेगी, मरने के बाद मुस्तफा की शफाअत मिलेगी, जन्नत में रफाकत मिलेगी। ये कानून है, इससे हट के कुछ ना होगा। जो बेसिक चीज है, बुनियादी चीज है, उस पर जोर दीजिए। यानी रस्मों रिवाज के पाबंद मत बनिए। जुलूस मोहम्मदी अच्छी चीज है मगर नमाज से ज्यादा अच्छी चीज नहीं है। नमाज पंजगाना पढ़ना फर्ज आजम है, नमाज के साथ जुलूस हो। अब 11वीं का बकरा अच्छी चीज है मगर नमाज से अच्छी चीज नहीं है, बड़ी अच्छी चीज नहीं है कि नमाज छोड़ के बकरा ज़बह किया जाए, नहीं, बल्कि जुलूस मोहम्मदी अच्छी चीज है नमाज के साथ। 11वीं का बकरा अच्छा है नमाज के साथ, फातिहा मिलाद अच्छा काम है नमाज के साथ। नमाज फर्ज है, हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है, रोजा फर्ज है। ये बुनियाद छोड़ के ये सिर्फ डेकोरेशन कहां करेगा जब जमीन ही नहीं रहेगी? मकान कहां बनेगा जब मकान ही नहीं रहेगा? तो नक्शो निगार कहां से आएगा? न जमीन है, न ढांचा है, न पिलर है, न छत है। अच्छा हम पुट्टी कहां करेंगे, पेंट कहां करेंगे, इंटीरियर डेकोरेशन कहां से करेंगे, शोकेस कहां लगाएंगे, फर्नीचर कहां लगाएंगे, एसी कहां लगाएंगे, अपने टाइल्स कहां से लगाएंगे?
लगाएंगे, मार्बल कहां से लगाएंगे? जब जमीन होगी तब ना ये सारा डेकोरेशन होगा, मकान होगा तब ना डेकोरेशन होगा। ये फातिहा, मिलाद, रस्मो रिवाज, उर्स, चादर, गागर, पीरी, मुरीदी, ये सब क्या है? वाल पुट्टी के मानिंद है। ये सब क्या है? रंग रोगन है। ढांचा, बुनियाद, स्ट्रक्चर क्या है? अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंबा है, नमाज दीन का खंबा है। ईमान मिसले जमीन के है और नमाज खंबा है। ईमान हासिल करें, जमीन भी रहे और नमाज का खूंटा रहे। फिर उसके बाद फातिहा, मिलाद के नक्शो निगार रहे, तो फिर क्या होगा? चेहरा भी खूबसूरत, दिल भी खूबसूरत, घर भी खूबसूरत, अकीदा भी खूबसूरत। कैसे होगा? जैसे चटनी से खाने का टेस्ट बढ़ जाता है, लेकिन रोटी चावल ही न रहे और सिर्फ चटनी रहे तो किसका टेस्ट बढ़ेगा? नमाज रोजा ही न रहे तो सिर्फ मिलाद, फातिहा, क़याम, उर्स और चादर, गागर, पीरी, मुरीदी रहे, और फिर चावल और रोटी ही नहीं, चटनी से क्या होगा? चावल भी रहे, रोटी भी रहे, सालन भी रहे और दाल भी रहे, और फिर थोड़ी सी चटनी आ जाए तो खाने का टेस्ट बढ़ जाता है। नमाज भी रहे, रोजा भी रहे, हज भी रहे, ज़कात भी रहे, अखलाक भी रहे, फराइज भी रहे, वाजिबात भी रहे, और फिर उसमें महफिल मिलाद की चटनी भी रहे, उर्स की खूबसूरती भी रहे, और हर जुमेरात के दिन फातिहा का रंग रोगन भी रहे, बुजुर्गों के साथ मुलाकात भी रहे और पीरी मुरीदी भी रहे, तो फिर क्या होगा कि जिंदगी जीने का हुस्न बढ़ जाएगा, इस्लाम का हुस्न बढ़ जाएगा, ईमान की क्वालिटी बढ़ जाएगी। अगर ऐसा हो गया तो फिर दुनिया में जीने का मजा मिलेगा, और सांस का रिश्ता टूटा तो जन्नत में रहने का मजा मिल जाएगा। दोनों जहान का लुत्फ मुस्तफा की गुलामी में है। इस यही मसले के आला हजरत है, इसी पे आला हजरत ने जोर दिया है। आला हजरत ने सारी जिंदगी नमाजों की पाबंदी करके, आला हजरत ने सारी जिंदगी रोजा रखकर, नमाजी ऐसे लाजवाब आला हजरत के 4-5 साल की उम्र से नमाजी है, और जिंदगी के जो आखिरी शाम थी, आखिरी जिंदगी का दिन था, 2:38 जो जुमा का दिन था, 25 सफरुल मुज़फ्फर 1340 हिजरी, उस दिन भी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई आपकी। फजर की नमाज आप पढ़े हैं, उसके बाद सारे काम को एक शेड्यूल के हिसाब से अपने बाल बच्चों को वसीयत किया, उनसे सूरह यासीन पढ़ने के लिए कहा, और जहां पढ़ने में खता हुई उसकी आपने गिरफ्त की, उनको सही बताया, वसीयत लिखवाया कि मेरे मरने के बाद ऐसा करना, कफन दफन में जल्दी करना, और सारे लोग आपस में मिल के रहना, ईमान अकीदे की हिफाजत करना, मेरी कब्र पे अगर मेरी कब्र को गहरी खोद देना, मेरी कब्र के इर्द गिर्द अगर अल्लाह ने तौफीक दी तुम लोगों को 3 दिन तक तिलावत और जिक्र दुरूद से मेरी कब्र को तन्हा मत छोड़ना, शायद कि तुम्हारे कुछ दिन रहने की वजह से मेरा दिल उस नए घर में लग जाए। इस तरह बेशुमार वसीयतें आपने नोट करवाई। यहाँ तो लोगों को होश हवास नहीं रहता है कि मरने से पहले फला बेटी को बुलाओ, फला बेटा को बुलाओ, रसगुल्ला खिलाओ, वो आकर के साहब जो सारी जिंदगी उसको देखने के लिए नहीं आया, वह रसगुल्ला मुंह में ठूस रहा, बदतमीज, जब तक लोग जिंदा हैं जिंदों को रसगुल्ला खिलाओ। ये मरने वाला जो अब दुनिया से मायूस हो चुका है, उसके मुंह में क्या रसगुल्ला ठूस रहा है, उसके मुंह में क्या पानी डाल रहा है। ये सब जाहिलाना और हिंदुओं को देख देख कर ये सारा काम लोग करते हैं। उस वक्त में सारे लोगों को कुरान पढ़ना चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि खात्मा बिल खैर हो जाए, रूह आसानी से निकल जाए और आने वाली मंजिलें कब्र की आसान हो जाए। नहीं, रसगुल्ला मुंह में ठूसा जा रहा है। साहब ये है, इसको पहचाने, ये बहन है, ये बेटी है, ये बीवी है, ये फला है, ये चिना है, ये जाहिलाना हरकत है। उस वक्त में सारे लोग उसके आखिरत की बेहतरी की दुआ करें, सारे लोग मिलकर कलमा शरीफ पढ़े, उनको कलमा पढ़ने के लिए नहीं बोले, वरना खतरनाक तकलीफ में झुंझुला के बोल देगा मैं नहीं पढ़ूंगा, फिर क्या हाल होगा। इसलिए मना है कि उसको कलमा पढ़ने के लिए भी ना बोले उस मरने वाले शख्स को, बल्कि उसके इर्द गिर्द सारे लोग कलमा शरीफ का इतना जोर से विर्द करें ताकि उनको भी याद आ जाए और उनकी जबान पे कलमा जारी हो जाए, और उनको पढ़ने के लिए परेशान मत बनाए, वरना मुमकिन है कि झुंझुला के बोल दे कि मैं नहीं पढ़ूंगा। उस वक्त तकलीफ इतनी ज्यादा होती है, जैसे नॉर्मल हालत में तिलावत दुरूद कर रहा है, महफिल में बैठा खिताब सुन रहा है, लेकिन किसी के दांत में दर्द हो, किसी के घुटने में दर्द हो, किसी के पेट में तकलीफ हो, वो महफिल में नहीं बैठता है, वो उसको कुफ्त महसूस होती है। वो जुमा में लंबी सूरत इमाम कर दे, लंबा खुतबा दे दें, उसको उससे तकलीफ पैदा होती है, वो उसका बस चले तो इमाम साहब की नरेटी जाके पकड़ ले। इसीलिए कहा गया है कि जब जमात हो तो वह मुख्तसर खुतबा हो, जब जमात हो तो मुख्तसर सूरत में नमाज पढ़े, बड़ी जमात हो मुख्तसर नमाज पढ़ाए, तो उसमें बहुत सारे बीमार हैं, उस सारे कमजोर हैं, मुसाफिर हैं, काम वाले हैं, इसलिए इमाम वो रहे जो हालात पे नजर रखे। वरना कुछ लोग इस कदर तंग मजाज तंग ज़र्फ होते हैं कि साहब वो तन्हाई में नमाज पढ़े तो बस झटपट नमाज पढ़ लें, और जब नमाज पढ़ाने के लिए जाएं तो साहब वो बिल्कुल खींच दें, पूरा लंबी सूरत खींच दें, जबकि तन्हाई में सूरह बकरा पढ़ एक रकत में, अगर अल्लाह तौफीक दे तो 2 रकत में, 1 रकत में सूरह बकरा पढ़ और दूसरी रकत में सूरह आले इमरान पढ़, ताकि 5 घंटे ताकि 2 घंटे लग जाए नमाज में, तो फिर इसकी वजह से तेरे दर्जात बुलंद हो
जाए। और जब लोगों को नमाज पढ़ाओ तो वहां दूसरे बीमार और परेशान हालों का ख्याल रखो। वह इन्ना आतना कल कौसर पढ़ ले, वह कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ ले, सूरह जिलजाल पढ़ ले, सूरह आदियात पढ़ ले, सूरह कारिया पढ़ ले, सूरह तकासुर पढ़ ले। वहां सूरह मुल्क और सूरह बकरा मत पढ़ना। हाँ, तन्हाई में नमाज पढ़ो तो एक ही रकत में पूरी रात गुजार दे और पूरा कुरान पढ़ ले चलेगा। यहाँ है तन्हाई में झटपट है। हमने देखा बहुत सारे लोगों को नमाज पढ़ा रहे हैं तो बस लंबा खींच रहे हैं, परेशान कर रहे हैं लोगों को। और जब फर्ज के बाद सुन्नत पढ़ रहे हैं तो हम एक रकत पढ़े हैं, वह 4 रकत पढ़ने के बाद सलाम फिर के दुआ करके भाग गए मस्जिद से। मैंने कहा, ए मौलवी साहब, ये क्या चीज है? अगर बिल्कुल ठहर ठहर के मखारिज की अदायगी के साथ अत्तहियात पढ़ना है तो सिर्फ जमात वाली नमाज ही में पढ़ना है या फिर सुन्नत में भी वैसे ही पढ़ना है? नहीं, जमात में है तो बिल्कुल साहब ठहर ठहर के आराम से पढ़ रहे हैं, और सुन्नत पढ़ने लगे तो जल्दी से एक ही रकत में 1 मिनट में 4 रकत पढ़ के भाग गए। इसका मतलब है ये नुमाइश है, ये दिखावा है, और ये लोगों को दंग करने का जरिया है। नाअहल इमाम ना बने, इसलिए कि नाअहल मुक्तदी की रियायत नहीं कर पाएंगे। तो दूसरों की रियायत करना होगा, दूसरों का ख्याल करना पड़ेगा। ये कौन करेंगे? जो साहिब इल्म होंगे। ये कौन करेंगे? जो अहले इल्म होंगे। मैं कहना चाहता हूं कि मुसलमानों को चाहिए कि फराइज़ व वाजिबात पे जोर दें, जो बुनियादी चीज है उस पे जोर दें। यही मसलके आला हजरत है। एक तरफ लोग कहते हैं सिर्फ नमाज पढ़, फातिहा मिलाद करना हराम है, वो भी जहन्नमी है। दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि सिर्फ फातिहा मिलाद कर, नमाज पढ़ने से क्या होता है? बात चली थी ना वह पीर साहब की, जो जुमा की नमाज रुकवा दिया, जो रमजान के रोजे तोड़वा दिया। ये नाअहल किस्म के लोग आके गांव देहात के गरीबों को उल्लू बनाते हैं, और गांव देहात का उल्लू बनता ही रहेगा जब तक वह आलिमों के करीब नहीं आएगा, वह तकरीर नहीं सुनेगा। इसी तरह वह जाहिल इसको उल्लू बनाएंगे और उसको नमाज छोड़वा के नजराने लेंगे और कहेंगे बस पंडित जी की तरह कि कुछ भी मत करो, हमको दक्षिणा और दान दे दो और तेरा कल्याण हो जाएगा और तू सुअर का चला जाएगा। उन लोगों की तरह कि चाहे शराब पियो, ज़िना करो, पाप करो, सब चलेगा, मगर एक दिन साल में आना, नारियल फोड़ देना और टाका लेके आना और पंडित जी को देना, ताकि पंडित जी खूब खाएं और खूब तोन ऊंचा करें, और फिर मंदिर में आने वाली खूबसूरत औरत को बहला फुसला के मंदिर के तहखाने में बलात्कार करें। आए दिन अभी 2, 4, 5 साल से इतने बाबाओं की साहब ये काला करतूत लोगों के सामने आ गए हैं कि कोई आशाराम बन के आ गया है, कोई साहब गुरमीत सिंह पंजाब का आ गया है, और कोई लड्डू वाला बाबा, कोई जिलेबी वाला बाबा, ये सब बाबा आ रहा हो। तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई मौलवी साहब नहीं आ रहा, वरना ये मीडिया वाला तो नोच नोच के खा लेता। ये मीडिया वाले को मौलवी नजर आते हैं, मस्जिद की नमाज नजर आती है, मस्जिद की अजान की आवाज नजर आती है। ये जिलेबी बाबा का ज़िना नजर नहीं आता है, ये लड्डू बाबा का बलात्कार नजर नहीं आता है, ये गुरमीत का ज़िना नजर नहीं आता है, उसको हाईलाइट नहीं करता है, उसको नहीं बोलता। एक गैर मुस्लिम हमारे पड़ोस का एक शख्स से, एक मुसलमान से कहा कि हमारे पंडित जी का पेट ऊंचा ऊंचा क्यों होता है मालूम है? हाँ, वो मोटा मोटा तगड़ा धाकड़ क्यों होता है? वो कहा कि कैसे होता, तुम ही बताओ सही। वो गैर मुस्लिम था, वो कुमार, वो बोला इसीलिए कि ये पंडित जी सिर्फ खाते हैं और खाने के बाद सोते हैं। इसके यहाँ कोई पाबंदी नहीं है कि ये प्रार्थना करना है, 1 घंटे तक ये करना, कुछ नहीं। वो सब ढोल ढाल बजाएं और संग फूकें और उसके बाद खाएं और सोएं। जो खाएगा सोएगा, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसका तोन ऊंचा होगा और नफ्स मोटा होगा। जो खाएगा पिएगा वो तो औरतों को झांकेगा और फिर वो उसकी तरफ माइल होगा। जिसका भी तोन ऊंचा होगा उसकी शहवत बड़ी होगी, ख्वाहिशात का गुलाम वो हो जाएगा। आपका मौलवी का इसलिए नहीं होता है कि आपका मौलवी फजर में उठता है 4 रिकात पढ़ता है, जोहर में 12 रिकात पढ़ता है, वो असर में 8 रिकात पढ़ता है, मगरिब में पढ़ता है, फिर ईशा में पढ़ के सोता है। जी 5 टाइम खाएगा, 3 टाइम, और नमाज पढ़ेगा 5 टाइम, और हर टाइम में 10-10 रकात, 12-12 रकात। वो उठेगा, रुकू में जाएगा, सजदा करेगा, मेहनत करेगा, और फिर वो बैठेगा। उसका तुंद कहां से ऊंचा होगा? ये खाता है, नमाज में एनर्जी उसकी सर्फ हो रही है, इसलिए उसकी ताकत भी महफूज है, जबान भी महफूज है, निगाह भी महफूज है। इसलिए खूब नमाज पढ़, उसके बाद तू खाएगा। ये खाना फसाद का जरिया नहीं बनेगा। खाएगा 4 रोटी, इधर 4 रकात नमाज पढ़ेगा, वह रोटी भी तहलील हो जाएगी, और फिर रूहानी एनर्जी नमाज से हासिल होगी, और जिस्मानी एनर्जी रोटी से हासिल होगी। बुराइयों की तरफ दिमाग नहीं जाएगा। जो 5 वक्त अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा, उसका ख्याल भी पाकीज़ा हो जाएगा, उसका दिल भी नूरानी हो जाएगा। यही है मसलक आला हजरत। यहाँ सिर्फ फातिहा मिलाद की वकालत नहीं की जाती है। बहुत सारे देवबंदी वहाँ भी कहते हैं फातिहा है, मिलाद है, उर्स है। जिस तरह मुहर्रम में जो जाहिलाना रस्म व रिवाज है, उसकी
मसम्मत मैं करता हूँ, मेरे उलमा करते हैं, और आला हजरत आज से 100 साल पहले उन्होंने मुरवजा ताज़ादारी को हराम 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 लिखा है और हराम है, मगर मुसलमान कुछ नहीं मानते हैं, वह शरारत करते हैं। तो ठीक उसी तरह से हम नमाज की वकालत करते हैं, मिलाद फातिहा पे नमाज से ज़्यादा जोर नहीं देते हैं, मगर ये शरीर किस्म के लोग ये हमें ताना देते हैं, नमाज पे जोर कम देते हैं और फातिहा मिलाद पे जोर ज़्यादा देते हैं। इसलिए इसके यहाँ 11वीं के लंगर में 1000 लोग नजर आ जाएंगे और नमाज फजर में 5 बूढ़े नजर आएंगे। ये देख लिए सुन्नियत है, नमाज फजर में 5 लोग हैं और लंगर गौसिया में 5000 लोग हैं। चूंकि इनका अकीदा है कि जो गौसे पाक का लंगर खा लेगा और सब मालामाल हो जाएगा और जो नमाज पढ़ेगा वह कंगाल हो जाएगा। इस तरह की गंदी गंदी बातें लोगों के सामने रखकर अहले सुन्नत व जमात से उसे मुनहरिफ करना चाहते हैं। बस नोट कर ले, नमाज रोजे हज व ज़कात फराइज़ व वाजिबात पे अमल करना यह बेस है, मगर मुस्तफ़ा की गुस्ताखी करके कुछ नहीं मिलेगा। और मिलाद फातिहा को हराम कहना, नमाज की वकालत करना, वो भी जाए जहन्नम में। और जो नमाज ना पढ़े और फातिहा मिलाद और जुलूस और मुहर्रम का अखाड़ा और साहब ताज़िया निकाले, वो भी जाए जहन्नम में। तो जन्नत का ये बीच का रास्ता है, मसलके एतदाल, मसलके इमाम आजम, मसलके आला हजरत के नमाज भी होगी, फातिहा भी पढ़ी जाएगी, नमाज भी होगी, जुलूस भी निकाला जाएगा, नमाज भी होगी, 11वीं का बकरा भी ज़बह किया जाएगा, नमाज भी होगी, मुहर्रम में सबील भी लगाए जाएंगे, यानी फर्ज भी अदा होगा और नफ्ल भी अदा होगा। यह दोनों मिलकर उस आदमी को जन्नत का मुसाफिर बना देगा। यही रास्ता है जन्नत जाने का, शहरे शफात नगर का मुसाफिर उसे बना देगा। इधर गए तो जहन्नमी, उधर गए तो जहन्नमी, और यह बीच का रास्ता इख्तियार किया तो जन्नत जाएगा। उसी को आज की तारीख में मसलके आला हजरत बोला जाता है। तो इस मसलक की रस्सी को थामे रहेगा, वह दोनों तरफ की गुमराही से बचकर जन्नत का मुसाफिर हो जाएगा। आला हजरत को जिसने कहा कि बिदअतियों के इमाम है, वो खबीस मरदूद है, वो नहीं जानता है। आला हजरत पहले शख्स हैं जिन्होंने कहा कि कब्र को सजदा करना हराम है। आला हजरत ने कहा कि कब्र का तवाफ करना हराम है। आला हजरत ने कहा कि कब्र को हाथ मत लगाओ, 4 हाथ दूरी पे रहो, अल्लाह के वलियों की कब्र से 4 हाथ दूरी पे रहो। तो आला हजरत बिदअत को मिटाने वाले हैं या बिदअत को परवान चढ़ाने वाले हैं? आला हजरत ने कहा सिर्फ एक चादर मजार पे डाल दे, जब तक वह चादर फट के पुरानी ना हो जाए उस वक्त तक कोई दूसरी चादर मत डाल। जैसे खाने काबा पे गिलाफ डाला जाता है ताकि दुनिया के खरबों घरों में खाने काबा जो अल्लाह का घर है वह मुमताज, डिफरेंट और डिस्टिंक्ट हो जाए, सबसे अलग थलग हो जाए, यह अल्लाह का घर है। और दूसरे घरों के ऊपर में चादर डालना हराम है, इसलिए कि खाने काबा के ऊपर चादर डालना सिर्फ उस घर के साथ खास है और दूसरे किसी घर के ऊपर चादर न डाले। गेट का पर्दा, खिड़की का पर्दा वो अलग है, मगर घर के ऊपर को पूरे चादर से ढक देना यह हराम है, क्योंकि यह काम सिर्फ खाने काबा के साथ खास है। उसी तरह कब्र में कब्रिस्तान में हजारों कब्रें हैं, आम मुसलमानों की कब्रें हैं। आम मुसलमानों की कब्र पे भी जाना चाहिए, सलाम करके उसके दुआ करके वापस आ जाने चाहिए। कब्र पर बैठना हराम है। कब्र पे बैठने का मतलब किसी जिंदा आदमी के सीने पे चढ़ जाए और जो उसको तकलीफ होती है वही तकलीफ कब्र पे बैठने से मुर्दे को होती है। इसलिए कब्रिस्तान में नया रास्ता हो उसमें नहीं जाए बंदा। पुराना जो रास्ता है जिसमें कब्र के न होने का कभी पुख्ता इम्कान हो उस रास्ते पे सफर करे, नए रास्तों में न जाए। अभी जन्नतुल बकी में लोग जाएं, जन्नतुल आला में, तो अंदर न घुसें, क्योंकि वहां के वहाबियों ने रास्ता तो कब्र मुबारक को तोड़ तोड़ के सड़कें बना दिया है लोगों के जाने आने के लिए। बहुत सारे हाजी हैं नादान किस्म के, गए बिल्कुल जानवर की तरह पूरे कब्रिस्तान के अंदर चले गए। न जाना कि सहाबी की कब्र है, उस पर मैं पांव देके कितना बड़ा गुनाह कमा के आ रहा हूं। यह अहले सुन्नत व जमात ही है जो अदब और डिसिप्लिन का पैगाम देता है कि जन्नतुल बकी से बाहर खड़ा रहा, यहीं से सलाम कर। जब तू सलाम यहां से कर सकता है सिद्दीक अकबर को और दूसरों को कहता है जाके सलाम कह देना, तो फिर वहां बगल में बकी के चौखट पे खड़े होकर बोलेगा आपको सलाम, आपको सलाम, ये नहीं पहुंचेगा। अंदर में घुस करके गुनाह कमाना ये कौन सा कमाल है? बकी शरीफ से बाहर रहा, यहीं से सलाम कर, यहीं से फातिहा पढ़, अंदर मत घुस। कब्रिस्तान के नए रास्तों में जाने से अगर वहां कब्र रही तो उसको ऐसी तकलीफ होती है मुर्दे को जैसे उनकी जिंदगी में उनके सीने पे चढ़ गए हों आप। वहां चप्पल लेके जाना माना है, बाहर में रहे। आम कब्रों का जब एहतराम है तो जो अल्लाह के वली की कब्र हो, जो किसी कुतुब की कब्र हो, किसी अब्दाल की कब्र हो, तो उनकी कब्र पे, उनकी कब्र को आम मोमिन की कब्र की तरह मत समझ। वो उस कब्र पे हाजिरी देने वाला वहां से नूर हासिल करेगा, उनकी जिंदगी को निगाहों के सामने लाकर वहां से इबादत करने का सलीका लेके लौटेगा। इसलिए है नेक लोगों की कब्रों पे जाओ, वहां कसरत से जाओ, वहां एक चादर चढ़ा दो ताकि 1000 कब्र है कब्रिस्तान में और एक चादर अल्लाह
अल्लाह के वली की है, फर्जी मज़ार नहीं। ये बहादुरगंज, ठाकुरगंज और किशनगंज और बायसी और अमोर, इस इलाके में बहुत सारे लोग कारोबार करने के लिए इस तरह के पंडित लोग करते हैं। पीपल का पेड़ है, खूंटा गाड़ दिया, धागा बांध दिया लाल, अब वहां झाम लेके बैठ गया। कोई तो दिन भर में कोई तो उल्लू फंसेगा, जैसे बंसी डाल दिया कोई न कोई मछली तो फंसेगी ही, उसी तरह झाम डाला, दिन भर में कोई एक आदमी 10 टका डाल दिया और 10 टका लिया, अपना सब्जी खरीद के घर चला गया। फिर दूसरे दिन बैठा, कोई न कोई उल्लू आ गया, 20 टका दिया, अपना काम कर लिया। तो टका कमाने के लिए वो पीपल का पेड़ खोजता है और पीपल के पेड़ में बांस लगा देता है, उसमें लाल झंडा डाल करके, लाल कपड़ा बांध के, दरख्त में कपड़े का टुकड़ा बांध करके, धागा बांध करके उसको बोलता है यहाँ दुआ कबूल होती है, यहाँ से मनोकामना पूरी होती है। तो खैर मुस्लिम अंधविश्वास, जहां देखा धागा, जहां देखा बांस, जहां देखा पीपल, जहां देखा कुछ, जहां देखा नदी नाला पहाड़, सबके सामने झुक गया और उसी को खुदा कहते हैं। मुसलमान ऐसा नहीं करता है, मुसलमान एक को खुदा कहता है जो खुदाए वाहिद है, जो सारी दुनिया का खालिक है। न चांद खुदा है, न सूरज खुदा है, न पहाड़ खुदा है, न नदी नाला खुदा है, न जंगल खुदा है, न बैल खुदा है, न भैंस खुदा है। जिसने इस सारी कायनात को पैदा की, जो वही है खुदा, वही है सबका मालिक, वही है सजदा के काबिल। जो उसके सामने झुकता है, वह किसी आदमी के सामने नहीं झुकता है, वह किसी पेड़ पौधे के सामने नहीं झुकता है, वह किसी झाड़ झंकार के सामने नहीं झुकता है। क्योंकि मुसलमानों में भी कुछ जलील किस्म के लोग हैं। जब यह जलील किस्म के लोगों को हुनर नहीं आएगा, ये पढ़ेगा नहीं, बच्चों को पढ़ाएगा नहीं, ये मेहनत नहीं करेगा, ये भीख मांगने वाला काम चोर, उसका चेहरा देख लें, जहन्नम में तो चेहरे का गोश्त तारा झड़ जाएगा क़यामत के दिन और जहन्नम में जलेगा। जो अपने बेटे के नाम पे मोटरसाइकिल और पैसा कौड़ी और कपड़ा लत्ता और टाइटन घड़ी मांगता हो, ये बहुत पौश फकीर है, महा फकीर, बड़ा फकीर है। इस फकीरों का भी चेहरे का गोश्त तो झड़ जाएगा क़यामत के दिन में। यह फकीर भी क़यामत के दिन नंगे हो जाएंगे और तमाम अहले महशर के दौरान जलील और रुस्वा हो जाएंगे। दौलत बढ़ाने के लिए पैसा मांगना ये हराम है और शादी करने के नाम पे लड़की वाले से पैसा लेना ये मुतालबा रिश्वत है और रिश्वत का लेना भी हराम है और मांगने के बाद उसका देना भी हराम है। ये मुतालबा जायज रिश्वत है। और मुस्लिम समाज हिंदुओं का देखा देखी खूब मुतालबा जहेज की कीचड़ में गर्दन तक लथपथ है। और ये हिजड़ा अपनी शादी में 10 लाख और एक कार तो ले लिया, मगर इस हिजड़े को मालूम नहीं है कि जब इनकी 5 बेटी होगी और वो बेटी कैसे, उस बेटी के लिए इसको कितने लाख रुपए देने होंगे, उस बेटी के लिए उसको कितनी जमीन बेचनी पड़ेगी और कितनी मस्जिदों के दरवाजे पे इसको शादी के लिए चावल और रजाई और फर्नीचर की भीख मांगनी पड़ेगी। क्यों ऐसी रस्म को पैदा किया कि तू लिया है एक गाड़ी और तुझको हो गई 3 बेटी, तो 3 बेटी को 3 गाड़ी देनी पड़ेगी और तू कौन सी जमीन बेच के देगा, जबकि उस लड़की वाले ने जमीन बेच के दिया है। एक फकीर जो 10 रुपए लेके खुश हो जाता है और एक ये महाफकीर है जो 10 लाख लेने के बाद भी इनका चेहरा लटका रहता है। ससुर से नाराज, ससुराल वाले से नाराज कि साहब हमको ईद में कपड़ा मिलना चाहिए और हमको हर मौके से वहां से संदेश आना चाहिए, नहीं आया तो रूठ गया, कपड़ा नहीं मिला तो रूठ गया, पेट्रोल नहीं मिला तो रूठ गया, ससुर नजराना है नहीं दिया तो रूठ गया। ये महाफकीर है। क़यामत के दिन इसके चेहरे का गोश्त झड़ जाएगा। दुनिया में भी जो मांगने वाला है, जो बेटी की शादी का कार्ड बना के दूसरे से झूठी तस्दीक करवा के मस्जिदों में खड़ा होता है, मेरी बेटी की शादी है फला तारीख को आप लोग मदद कीजिए, या 10 साल से उसी कार्ड पे चंदा कर रहा है और खाता, उनका चेहरा देख लीजिए, चेहरा बिल्कुल काला होता है, उसका चेहरा बिल्कुल पज़मुर्दा होता है, क्योंकि मांगने वाले के चेहरे का चेहरा जिल्लत से भर जाता है। क़यामत के दिन उसका गोश्त झड़ जाएगा। जो फकीर हकीकत में फकीर, जिसके पास आज खाने का नहीं है, वह सिर्फ खाना मांगे, कपड़ा अगर है तो कपड़े का सवाल करना उसके लिए हराम है। लेकिन ये हराम कारोबार चल रहा है। कोढ़ी किस्म के लोग जिस बिरादरी में होंगे उस बिरादरी में ज्यादा फकीर पैदा हो जाएंगे। मुसलमानों में आज काम चोर ज्यादा है। 8 घंटे ईंट ढोएगा और हलाल तरीके से 500 रुपए कमाएगा ताकि बदन में नूर, चेहरे में नूर, सीने में सेटिस्फैक्शन, औलाद में नूर। नहीं, उसे तो मांगने की आदत लग गई है कि 500 रुपए 8 घंटे कौन ईंट ढोएगा। यहाँ तो एक आदमी को हम सामने गाएंगे रोएंगे तो वह 500 रुपए अकेले दे देगा। ये भिखारी मुसलमानों में इसलिए बढ़ गए, मुसलमानों में काम पे, स्ट्रगल पे, जद्दोजहद पे, मेहनत पे जोर कम दिया जा रहा है, जबकि सबसे ज्यादा जोर इस्लाम ने दिया है। जहां 30-30 दिन का 12-12 घंटे भूखे रह के रोजा रखना है, जहां हज के मौसम में 40 लाख हाजियों का, अभी मिना, अभी अरफात, अभी मुजदलफा, फिर मुजदलफा से वापस, फिर तवाफ, फिर तवाफ से वापस आके मिना में रात करना, क़याम करना, यानी ये स्ट्रगल, ये जो जद्दोजहद, ये मुजाहिदाना और फौजी जिंदगी की ट्रेनिंग, ये रोजाना 5 टाइम दुकान मस्जिद, दुकान मस्जिद, दुकान मस्जिद, खेत मस्जिद, घर मस्जिद, अभी सोया मस्जिद से आके फिर उठा फिर मस्जिद, ये स्ट्रगल जद्दोजहद। तो जिस मजहब में नमाज और रोजा और हज है, उस मजहब के फॉलोवर पूरी हो जाएंगे, उस मजहब के फॉलोवर
फॉलोवर भिखारी हो जाएंगे, उस मजहब के फॉलोवर जलील हो जाएंगे, उस मजहब में मांगने वालों की तादाद बढ़ जाएगी। यह सिर्फ इसीलिए है कि हमने शरीयत के कानून को ताक पे रखा और हमने बिला वजह भिख मंगों को इजाफा किया, मांग लिया, दे दिया कि बेटी की शादी हो जाए। समाज को नहीं देखा कि नहीं बाइकाट किया जाए इन भिखारियों का, सारा समाज मिलकर बाइकाट करे, जो भी मुतालबा जहेज करे उसकी शादी नहीं की जाएगी। अल्लाह पर भरोसा रखे, उसकी बेटी उससे ज्यादा अच्छे घर में रहेगी। यहाँ तो 10 लाख की कार देने के बाद भी रात दिन लत्तम जुत्तम है, शौहर बात नहीं कर रहा है, वह दूसरी औरतों के पास रात गुजार रहा है, वह सऊदी अरब कमाने के लिए 5 साल लौट के नहीं आ रहा है, तलाक भी नहीं दे रहा है, उनके जज्बात का खून भी कर रहा है। और खोजो लड़का सऊदी अरब वाला मिल जाए, 5 लाख कमाने वाला मिल जाए, आधे तो 10 लाख दे देंगे, मगर लड़का नौकरी वाला मिल जाए, लड़का नौकरी वाला मिला, उसके ऑफिस में दूसरी छोकरी के साथ संबंध है, ये बीवी से बात तक नहीं करता है, तो नौकरी को जब तक तरजीह देगा और इन भिखमंगों को जब तक हौसला अफजाई करेगा, उस वक्त तक इसी तरह के दिन देखने पड़ेंगे। अल्लाह पर जब एतमाद बढ़ेगा और तकवा परहेजगारी को जब फौकियत दी जाएगी, तो उस निकाह में अल्लाह बरकतें अता फरमा देगा। और जब निकाह में बरकत होगी तो औलाद में बरकत होगी। जब बाप सैयद गयासुद्दीन हो कि दिन भर हलाल रोजी की तलाश और रात भर तहज्जुद की नमाज, और माँ रात भर मुसल्ले पे बैठी अल्लाह का जिक्र करने वाली और हलाल कारोबार से पेट पालने वाली, और पेट पालने वाला बाप, या दोनों जब हो तो उसका बेटा जोकर लोफर नहीं, 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा होता है। और जब बाप मुफ्ती नकी अली खां जैसा अपने अहद के हिंदुस्तान के 10 टॉप आलिमों में, और जिसके घर जो आंख खोला था जागीरदार घराने में, जिसको हिंदुस्तान के राजा बादशाह दिल्ली की तरफ से पूरा रोहेलखंड का सारा इलाका बतौर जमींदारी उनको दिया गया था, ये सारे देहात का हजारों एकड़ जमीन, ये सब उस जमीन का टैक्स, उसका खजाना बतौर इनाम बादशाह दिल्ली की तरफ से आला हजरत के पासदाताओं को बतौर इनाम दिया गया था, क्योंकि उन्होंने बादशाह दिल्ली का काम किया था। उस इलाके में उन्होंने बहादुराना काम अंजाम दिया था, वहां का जबरदस्त फौजी बनकर उस इलाके के हंगामे को दूर किया था। तो बादशाह दिल्ली खुश होकर आला हजरत के आबा अजदाद को पूरा इलाका बतौर जमींदारी बतौर इनाम उनको दिया था। तो बस वो जमींदार घराने में पैदा हुए थे नकी अली खां, लेकिन इल्म की चादर ओढ़ ली, दुर्वेशी की चादर ओढ़ ली। उन्होंने फतवा नवीसी का काम अपने बाप रजा अली खां को देखा था। आला हजरत के दादा मुफ्ती थे, उनके बाप अपने इलाके के जबरदस्त मुफ्ती थे। जब बाप हो गए रजा अली खां जैसा और माँ हो गई परहेजगार, तो अल्लाह ने बेटा नकी अली खां जैसा हिंदुस्तान का बड़ा मुफ्ती अता किया। और जब बाप हुआ नकी अली खां, जिसको उस जागीरदार घराने में पैदा होने के बावजूद उससे बड़ा जाहिद कोई नहीं, उससे बड़ा नमाजी कोई नहीं, उससे बड़ा सुन्नियत का खादिम कोई नहीं। जब बाप नकी अली खां जैसा और माँ तहज्जुद गुजार, उसी कोक का बच्चा क़यामत तक के सारे रज़वियों का इमाम अहमद रजा का फाजिल बरेलवी पैदा हुआ है, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन पैदा हुआ। जब बाप हो इमाम अहमद रजा खां और माँ हो तहज्जुद गुजार नमाज पंजगाना का पाबंद, तो बेटा 1.5 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद बरहक मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफा रजा खां पैदा होता है। और जब बाप नाना हो मुफ्ती आजम हिंद और दादा हो हुज्जतुल इस्लाम, जिनको काफिर हुस्न को देखे तो कलमा पढ़ ले, जब दादा हुज्जतुल इस्लाम और नाना मुफ्ती आजम हिंद और बाप मुफस्सिर आजम हिंद और माँ अपने ज़ेवरात को बेचकर मंज़िल इस्लाम चलाने वाली, तो उस कोक का बच्चा 10 करोड़ कमोबेश मुरीदों का मुर्शिद बरहक अख्तर रजा खां अज़हरी पैदा होता है। कुदरत का कानून है कि जैसी जमीन वैसी फसल, जैसी माँ वैसी औलाद, जैसा बाप वैसी औलाद। इसलिए अगर चाहते हैं कि गुलाम गौस मेरा बच्चा हो, गुलाम ख्वाजा मेरा बच्चा हो, गुलाम अहमद रजा मेरा बच्चा हो, गुलाम आला हजरत मेरा बच्चा हो, गुलाम ख्वाजा गरीब नवाज मेरा बच्चा हो, तो उसके लिए शादी ब्याह में सिर्फ लड़की का लोल नहीं देखना है, लड़की की नाक नहीं देखनी है, लड़की का गोरा चेहरा नहीं देखना है, लड़की की 6 फीट की हाइट नहीं देखनी है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो अपने क्लास के साथियों के साथ यूज्ड हो चुकी हैं, नाक है लंबी, आंख है बड़ी बड़ी, चेहरा है गोरा, बॉडी है सुडौल और फिट, लेकिन वो 4 हमल
حمل اس کے گر چکے ہیں، مگر لوگ بھی اتنے ذلیل ہو گئے ہیں، اخیر زمانے میں ذلیلوں سے دنیا بھر جائے گی، اس لیے چاہے حمل گرے، چاہے تو بچہ اس کا گر گیا ہو، کچھ نہیں، ناک لمبی ہونی چاہیے، آنکھ بڑی ہونی چاہیے، چہرہ گورا ہونا چاہیے، 6 فٹ کی ہائٹ ہونی چاہیے۔ کیا تو چاہتا ہے کہ تیری بیوی شادی سے پہلے 4 حمل اس کا گر چکا ہو؟ جب نہیں چاہتا ہے تو آئے دن اس طرح کی خبریں آ رہی ہے، تو مصطفیٰ کے قانون کو توڑ کر یہ ناک کیوں دیکھ رہا ہے، آنکھ کیوں دیکھ رہا ہے؟ پھر تیارہ کہ تیری بیوی کے 4 حمل گرے ہیں تو پھر تیری اولاد کے 10 حمل گریں گے، چونکہ قدرت کا قانون ہے، جیسی زمین ویسی فصل۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ زنا ایک قرض ہے، اگر تو نے زنا کیا تو تیری اولاد سے قرض وصول کیا جائے گا۔ اور حضور نے کیا فرمایا 1400 سال پہلے، لا تزوجوہن لحسنہن، صرف حسن کو دیکھ کے شادی مت کر۔ مصطفیٰ جنت کے مالک، محبوب پروردگار، ہم سبوں کے پیشوا، جنت دلانے والے، ہمارے شفیع، وہ کیا کہتے ہیں کہ صرف حسن دیکھ کر شادی مت کر، یہ حسن لڑکی کو تباہ کر دے گا۔ مصطفیٰ کہتے ہیں وَلَعَمَةٌ صَعْدَاءُ ذَاتُ الدِّينِ افضل، کالی کلوٹی دیندار عورت تیرے حق میں بہتر ہے۔ حسن والی مغرور ہوتی ہے اور حسن کا مزہ ہمیشہ نہیں رہتا ہے۔ نہیں دیکھا تم نے ثنا خان وہ ناگپور کی کوئی عورت، وہ ایک غیر مسلم سے محبت کری، ڈھابا والے سے، اس نے اس کے بدن کو نچوڑا، اس سے شادی کر لی، پھر اس کو گلا دبا کر کے جبل پور کے نہر میں گٹر میں ڈال دیا۔ نہیں دیکھا تم نے وہ آفتاب پورنا والا کسی خوبصورت پتلی دبلی لین اینڈ تھین اسمارٹ لڑکی سے محبت کیا اور لیو ان میں رہنے لگی، اس کے بدن کو نچوڑ کے سٹھی بنا دیا، پھر جب وہ شادی کا دباؤ بڑھانے لگی کہ شادی کر لو، ہم کو تم نے کئی سال سے نچوڑا ہے، تو اب کہاں چھوڑے گا، کس چوراہے پہ؟ شادی کے جھانسے میں ایسا کیا ہے اور شادی کی لالچ ہی میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ہے، اب تو شادی کر لو، کیونکہ اس کو تو نچوڑ چکا ہے، اس کو تو جان چکا کہ ضدی ہے، چڑیل ہے، بد زبان ہے، اس سے میرا نباہ مشکل ہو جا، شادی کسی دوسری خاتون سے کرو، اس کو تو نچوڑنا تھا، اس کے حسن کو نچوڑ لیا، لیکن اس کے بعد کیا کیا؟ جب شادی کا دباؤ بڑھا، اس کے 50 ٹکڑے کر کے 50 جنگلوں میں پھینک دیا۔ تو حسن اگر بڑی چیز ہے، حسن کا جادو ہمیشہ رہتا ہے، تو آفتاب پونا والے کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ثنا خان کے ساتھ اس کے لفر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور آئے دن اس طرح کی خبریں ملتی ہیں، میں نے اپنی زندگی میں کئی تجربات دیکھے ہیں، لڑکا بھی اسمارٹ ہے، لڑکی بھی اسمارٹ ہے، ارب پتی گھرانے کا ہے، لیکن طلاق ہو گئی، دونوں میں نباہ نہیں ہوا، لڑکا بھی ادھر مر رہا ہے، اپنی جوانی گزار دی، بڑھاپے میں تبدیل ہو گئی اس کی جوانی، اور لڑکی بھی اسمارٹ خوبصورت، کروڑوں میں ایک، وہ بھی طلاق کے بعد وہ بھی ایسی تنہائی میں زندگی گزار دی، اب پتہ نہیں وہ مری کی زندہ ہے کہ میں نہیں جانتا، یہ آج سے 15-20 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت میں اس کی عمر نہیں ہوگی 40 سال، ابھی تو 60-65 سال کی بوڑھی ہو گئی ہوگی، اس کا شوہر بھی بوڑھا ہو گیا ہوگا، اس کے جوان بیٹے اب پائلٹ ہو گئے، جو شوہر کے بغیر ماں کے پاس وہ لڑکا رہتا تھا، اس کو پڑھا لکھا کہ وہ جہاز کے پائلٹ ہو گئے، تو اب ساری زندگی تنہائی میں گزر گئی۔ وہ اسمارٹنیس کو دے گا، حضور نے کہا تھا لا تزوجوہن لحسنہن، صرف حسن دیکھ کے شادی مت کر۔ غیروں کو دیکھ دیکھ کر آج مسلمان لڑکوں کو بھی یہی جنون سوار ہو گیا، وہ بھول جاتا ہے کہ 10 دن کے بعد یہ جنون ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کے بعد لڑکا ڈھونڈتا ہے ان کی زبان کا حسن، ان کے اخلاق کا حسن، ماں باپ کی خدمت ڈھونڈتا ہے، وہ پاؤں دبانا ڈھونڈتا ہے، سر میں تیل لگانا ڈھونڈتا ہے، لیکن جو چہرے کو دیکھا ہے اور اس کے کیریکٹر کو نہیں دیکھا ہے، وہ تیل نہیں لگائے گی، وہ پاؤں نہیں دبائے گی، وہ بولے گی میں تیری بیوی ہوں، بس تیری ماں کی نوکرانی میں نہیں ہوں، میں تیرے باپ کی نوکرانی نہیں ہوں، میں تیرے بھائی کی نوکرانی نہیں ہوں، میں تیرے گھر کا سارا ناز اٹھانے والے نہیں ہوں۔ اس کے بعد جب تیرے ایک زندہ ضمیر اگر ہے اور زندہ شوہر ہے اور زندہ بیٹا ہے اور تیری بیوی ماں کے پاس جا کے خدمت نہیں کرے گی، اس کے دل پہ کیا گزرے گا؟ وہ 1000 محبت کرو، 1000 چہرہ اس کا حسین ہو، مگر وہ حلق سے نیچے نہیں اترے گی۔ جو ماں کا نہیں وہ میرا نہیں، جو میرے گھر کے سارے لوگوں کو اپنا دشمن اور اجنبی سمجھتی ہو، وہ اس کی محبت دل میں کیسے پیدا ہو گیا؟ ہاں، کچھ ہجڑے ایسے ہیں جو ماں باپ بھائی بہن سارا خاندان چھوڑ دیں گے، اس بیوی کا اس عورت کا تلوا چاٹیں گے، چاہے ایک ماں کے علاوہ کوئی دنیا میں عورت نہ ملے، کوئی دوسری ماں، اور ملے گی بھی نہیں، مگر عورتوں کی وجہ سے اس ایک ماں کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے لوگ شہوت کے غلام ہوتے ہیں، خواہشات کے غلام ہوتے ہیں، وہ ایسے ہی لوگوں کو عام دیہاتی زبان میں خطرناک لفظ بولا جاتا ہے، تلوا چاٹنے والا اس کو بولا جاتا ہے۔ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں تلوا چاٹنے والے، اپنی بیویوں کا کہ ان کا پخانہ دھونے والے، اس کا صاحب ان کے سر پہ بیٹھ کے وہ پیشاب کرے، سارا ناز اٹھانے والے۔ ماں جیسی چیز جو 9 مہینے پیٹ میں رکھی، 2 سال خونے جگر پلائی، 10 سال تک اس کا پھلیا پیشاب پخانہ دھویا، یہ چھوڑنے کی چیز ہے؟ یہ ماں باپ تو قربان ہونے کی چیزیں ہے، جس نے مجھ کو پیدا کیا، جس نے لاڈ پیار دیا، جو 10 سال ایک لمبی قربانی دی، اب میں نے ایک چھوکری کے چکر میں اس کو چھوڑ دیا۔ چھوکری کو چھوڑی جا سکتی ہے، ماں باپ کو نہیں، کیونکہ ایک چھوکری کو چھوڑیں گے 4 بیوی سے شادی کر لیں گے، وہ مل جائے گی، اور ایک ماں چھوٹ گئی تو
قیامت تک کوئی دوسری ماں نہیں مل پائے گی. ایک باپ اگر چھوٹ گیا قیامت تک کروڑوں مردوں کی بھیڑ میں دوسرا باپ نہیں ملے گا. یہ تو اپنے اپنے ظرف کی بات ہے. اس لیے حضور نے کہا تھا کہ کالی کلوٹی تیرے حق میں بہتر ہے. کالی کلوٹی وفادار رہے گی. کالی کلوٹی کے حسن پر کوئی دوسرا چھوکرا گلی کا فریفتہ نہ ہوگا. ورنہ تو جائے گا دلی, اب فوجی فوج میں پڑوسی موج میں رہے گا. تجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی گلی کا چھوکرا تیرا دوست ملا تو پھر وہ بستر اس کا رہے گا, تیرا نہیں رہے گا. پیسہ رہے گا تیرا, اور اس میں ہاتھ میں پرس رہے گا تیرا, اس پرس میں 10,000 روپے رہیں گے تیرے, اور گھر رہے گا تیرا, اور مارکیٹنگ ہوگی دوسرے پڑوسی کے ساتھ میں. اس لیے حضور نے کہا تھا کہ صرف حسن دیکھ کے شادی مت کر. آج وہ سارے ڈرامے ہو رہے ہیں. ابھی 10 دن پہلے ایک چچا تو اس کا اپنا خاص بھتیجا اس کو مارنے کے لیے چلا گیا تاکہ اس کو مار دوں تاکہ چچی کے ساتھ میں شادی کر لوں. آج سے کچھ سال پہلے ایک بھانجا وہ اپنے ماما کو مارنے چلا گیا تاکہ ماما کو مار دوں اور اس کی بیوی یعنی مامانی سے شادی کر لوں. اسلام نے کہا تھا مامانی سے پردہ فرض, مامانی کا بھانجے سے پردہ فرض ہے, چچی کا بھتیجے سے پردہ فرض ہے. لیکن تم نے اپنے من سے گڑھ لیا کہ نہیں یہ تو بیٹا ہے, یہ تو بیٹا ہے, بھتیجا ہے, بیٹا ہے. تمہارے کہنے سے بیٹا ہے یا شریعت کے کہنے سے بیٹا ہے؟ شریعت جو کہے وہ مان. سنت اور شریعت پہ عمل کرنے والا کبھی خسارے میں نہیں ہوتا. اگر بظاہر خسارہ ہو بھی اور سنت پہ عمل کرے تو اللہ کی طرف سے برکتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے. جو سنت کے مطابق شادی کرے, مسجد میں کرے اور متقی پرہیزگار سے کرے تو اللہ اولاد میں سی برکتیں دیتا ہے. وہاں سے قطب پیدا کرتا ہے, ابدال پیدا کرتا ہے, نمازی پیدا کرتا ہے. غوث نہیں تو غلام غوث پیدا کر کے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا دیتا ہے. اس لیے آنے والی نسلوں کو نیک بنانے کے لیے نیکوں کا چرچا ضروری ہے. میں نے نیکوں کے عادات اور اطوار کا چرچا کیا ہے, میں نے نیکوں کے کلچر کا چرچا کیا ہے, میں نے نیکوں کی حالت زندگی کا چرچا کیا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت کو یہ آج کل کے کم پڑھے لکھے لوگ کیا جانے کہ اعلیٰ حضرت کس کا نام تھا. میں صرف 2-3 بڑے زبردست ان کے ہم عصر ولیوں کا نام لیتا ہوں. ان سے پوچھتا ہوں کہ احمد رضا کون تھے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ایک معمولی سا مولوی تھے, خانقاہوں کے لوگ, جاہل, داڑھی منڈانے والا پیر صاحب, عورتوں کو بٹھا کر کے تعویذ گنڈا کرنے والا, عورتوں کے بیچ میں بیٹھ کر کے اس کے بدن پہ ہاتھ رکھ کر کے دھاڑ پھونک کرنے والا یہ جاہل, یہ کہتے ہیں کہ میرے باپ دادا پرانے ولی تھے. اور یہ رضا خان پٹھان کہاں سے آ گئے کہ سارے لوگ رضا 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 کے رنگ میں رنگے جا رہے ہیں. اور ہمارا ولی, ہمارا باپ 500 سال پہلے کا ولی تھا. تمہارا باپ ولی تھا, تم کیا ہے؟ تمہارا باپ ولی تھا مگر یہ بتا دے کہ تم کیا ہے. تمہارا باپ آیا تھا افغانستان سے, بخارا سے, تمہارے باپ آئے تھے فلسطین سے, ملک شام سے, مگر تم یہ بتا دے کہ کیا تمہارا چہرہ باپ کی طرح ہے؟ کیا تمہارے گھر کا ماحول باپ کی طرح ہے؟ تو کیا چاہتا ہے کہ باپ کی قبر کے نام پہ روٹی کھاؤ, باپ کی قبر کے نام پہ لوگوں کی عقیدت کی تلوا چٹائی کھاؤ, باپ کے نام پر ہی لوگوں سے دستبوسی کرواؤ؟ یہ اس دنیا میں نہیں چلتا. چاہے تم 1000 بکواس کرو یا اپنے باپ دادے کی کرامت بیان کرو, میرا باپ ایسا تھا, میرا باپ ویسا تھا, تو تیرا باپ ویسا تھا, تو کیسا ہے؟ اور تو باپ کا نام لے کے چاہتا ہے کہ میں لوگ میرا ہاتھ چومے, نہیں ہوگا ایسا. اعلیٰ حضرت کی جو شہرت ہے وہ باپ کے نام پہ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کی جو شہرت ہے ان کے خاندان کے آبا و اجداد کے نام پہ نہیں ہے. وہ تو کسی بڑی پرسنالٹی کی بایوگرافی جب بیان کی جاتی ہے تب ان کے خاندان کی عظمت بھی بیان کی جاتی ہے, ان کے ماں باپ کی عظمت بھی بیان کی جاتی ہے. لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی پہچان ماں باپ سے نہیں ہے, ان کی پہچان ان کے خاندان سے نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کی پہچان ان کے علم سے ہے, ان کے عشق سے ہے, ان کے عمل سے ہے, ان کی دینی خدمتوں سے ہے. اللہ کا کوئی ولی 1,00,000 بار کلمہ ڈیلی پڑھے, 1000 نفل پڑھے, وہ بس وہیں تک محدود ہے. ان کے مرید آئیں گے, چادر چڑھائیں گے, سال میں ایک بار عرس کریں گے, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ مدرسے میں درسگاہ میں ان کا نام لیا جائے, ان کی کتابوں کو پڑھ پڑھ کر ان کو خیرات پیش کیا جائے, امریکہ میں مناظرہ ان کی کتاب سے کیا جائے. جو کتاب لکھتا ہے, فتنے کا جواب دیتا ہے, جو مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے, چرچا مسلمان ان کا کرتا ہے, نہ کہ کوئی ولی تھا سجدہ کرتا تھا, ہاں وہ ولی تھا, وہ جنت چلا گیا, ان کی قبر پہ دعا قبول ہوتی ہے, بس میں وہاں جاؤں گا اور دعا کروں گا. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ان کا نام میں درس
درگاہ میں لو, جمعہ کے خطبے میں لو, میں مناظرے میں لو, میں خطابت میں لو, میں تصنیف میں لو. تصنیف میں اس کا نام ہوگا جس کی تصنیفات سے مدد لی جائے گی. مناظرے میں ان کا چرچا ہوگا جن کا ہتھیار مناظرے کی جنگ ہم کو جتائے گا. اس کا نام مدرسے میں لیا جائے گا جن کا احسان مدرسے پہ ہوگا. خانقاہ میں اس کا نام ہوگا جن کا احسان خانقاہ میں ہوگا. خطابت میں اس کا نام لیا جائے گا جن کا احسان خطابت پہ ہوگا. تصنیف میں اس کا نام لیا جائے گا جن کا احسان تصنیف کی دنیا میں ہوگا. احمد رضا ایک خالص مولوی یا خالص ولی کا نام نہیں ہے. قطب الارشاد ہے, نائب غوث اعظم ہے, اپنے زمانے کے بڑے ولی کامل ہے. اس کے ساتھ میں ایک زبردست مصنف ہے, 1000 کے قریب کتابیں لکھی. اسلام پہ ہونے والے ہر حملے کا جواب دیا. جو گرد آ رہی تھی, دھول لوگ ڈال رہے تھے, اس دھول کو صاف صاف کر کے سنیت کا چہرہ چمکایا ہے. گالیاں سن کر, مار کھانے کی دھمکیاں دے کر, مغلظات سے بھرے ہوئے خطوط لکھے گئے, وہ سب کچھ سہا. میں مصطفیٰ کے گستاخوں کا تعاقب کیا, ان کا پیچھا کیا, ان کی باتوں کی دلیل دی, ان کا رد کیا, اہل سنت کا چہرہ چمکایا. آج اگر میرا ایمان سلامت ہے تو احسان فتویٰ رضویہ کا, احسان کنز الایمان کا, احسان الامن والعلا کا, احسان ہدایت کی بخشش کا. آج اگر ہر مدرسوں میں سلام پڑھا جا رہا ہے تو احسان اعلیٰ حضرت کی پیاری شاعری کا. آج اگر ہر درسگاہ, ہر دار الافتاء روشن ہے تو احسان فتویٰ رضویہ کا. تو احمد رضا کو کیسے بھولا پائے گا تم اور تیری سارے مرید, تیری ساری ذریت یہ احمد رضا کے خلاف رہے تو بھی اس کا نام مٹے گا نہیں. جب تک کنز الایمان رہے گا رضا کا نام رہے گا, جب تک فتویٰ رضویہ رہے گا رضا کا نام رہے گا, جب تک ہدایت کے بخشش رہیں گے رضا کا نام رہے گا, جب کفی الفقیہ الفہیم رہے گا رضا کا نام رہے گا. 1000 ہتھیار کتابوں کا جب تک رہے گا, اس سے فائدہ جب تک حاصل کیا جائے گا, اس وقت تک کھانے اور سونے والے کا ڈنکا نہیں بجے گا. جو رضا 2 گھنٹہ سوتا تھا, باقی 22 گھنٹہ دل کی خدمت کی فکر کرتا تھا, تو ڈنکا اسی رضا کا بجتا رہے گا. اس لیے وقت گزرتا جاتا ہے, فتویٰ رضویہ کو سمجھنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, تو اعلیٰ حضرت کی عظمت کا ڈنکا بھی 4 دانگ عالم میں بجتا چلا جا رہا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, تعلیمات اعلیٰ حضرت علامہ ڈاکٹر شہریار رضا قادری. ہم لوگ کیا سمجھیں رضا کس کا نام ہے؟ بس صرف ایک شخص کا میں نام لیتا ہوں, میں اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں. لگ بھگ 1.25 گھنٹے میرا خطاب ہونے جا رہا ہے. بس صرف ایک ولی کا نام لیتا ہوں جس کو پورا ہندوستان علامہ محدث سورتی کے نام سے یاد کرتا ہے, جو بخاری شریف پوری کی پوری گیٹ بائی ہارٹ. ہم بول رہے ہیں 2 گھنٹہ سے تو ہم کو پیاس ہی نہیں لگ رہی, اور یہ سن رہے ہیں تو ان کو پیاس لگ رہی ہے. بولنے والے کو پیاس لگنی چاہیے, سننے والے کو نہیں. چلیے آپ کو پیاس لگی, بہت آپ پانی پی لیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بولنے والے کو پیاس نہیں لگتی ہے اگر وہ حق بات بولتا ہے. ہاں, جو جھوٹ بولتا ہے اس کو پیاس لگتی ہے. لال قلعہ سے جو بولتا ہے, غلط سلط بولتا ہے, اس کو تو آدھے گھنٹے میں 10 بار پانی پینا پڑتا ہے. مگر جو 2 گھنٹے بزرگوں کا چرچا کرتا ہے, پیاس کا احساس تک نہیں ہوتا ہے. میں کھانا کھایا ہوں ابھی سے 4-5 گھنٹے پہلے, اور مگر اس بیچ میں کھانا کھانے کے بعد ایک جگہ میں گیا تھا ایک آدمی سے ملنے کے لیے. انہوں نے پلاؤ وغیرہ سب کھلا دیا, مغرب کی نماز کے فوراً بعد ہی کھلا پلا دیا. تو پلاؤ کھانے کے بعد کتنی پیاس لگتی ہے سب کو معلوم ہونا چاہیے. مگر نہیں, میں ابھی 2 گھنٹے سے بات کر رہا ہوں, اور 2-3 گھنٹے اس سڑیل سڑک سے سفر کر کے میں آیا ہوں. وہاں کے 1.5 گھنٹے کا راستہ ہے پورنیہ سے یہاں تک, زیادہ کلومیٹر نہیں, لیکن وہ سڑی ہوئی سڑک پہ چونکہ آنے میں 3 گھنٹے لگ گئے, جبکہ 1.5 گھنٹے لگتے ہیں. 3 گھنٹے لگ گئے, اس لیے تھوڑی سی تاخیر ہماری ہو گئی. تو 3 گھنٹے کار پہ, اور 2 گھنٹے سے بھی میں بول رہا ہوں. تو ہم کو تو پٹ پٹ پانی پینا چاہیے, لیکن جس کا سینہ خوب چوڑا ہے, بہت دعویٰ ہے, مگر بولتے ہوئے زبان لگتی ہے, لڑکھڑاتی ہے, پانی چاہیے. کیوں؟ جھوٹ بولنے والے کو تو پانی پینا پڑے گا, اور جو قرآن حدیث بزرگوں کا چرچا کرتا ہے. میرا اپنا ذاتی 53 سال کا تجربہ ہے کہ جو حق بولتا ہے, قرآن حدیث بولتا ہے, بولتا چلا جاتا ہے, روحانی انرجی ملتی چلی جاتی ہے. ایک آدھیاتمک شکتی ہے, ایک روحانی طاقت ہے. میں بھی تو انسان ہوں, آپ ہی کے
समाज में रहता हूँ और 7-8 साल से शुगर को भी झेल रहा हूँ, जबकि शुगर वाला आदमी को हर 1 घंटे पे पानी चाहिए, हर 10 मिनट पे पानी चाहिए, मगर इस शुगर की मौजूदगी में 5-5 घंटे मैंने तकरीर की है और एक बार भी बीच में मैंने पानी नहीं पिया है। और जब शुगर 1 साल में किसी को हो तो वो घबराने लगता है, लेकिन यहाँ 7-8-9 साल होने जा रहे हैं, तकरीर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जबकि पहले से बढ़ भी गई है तकरीर। लोग कह रहे थे कि अब शुगर हो गया, अब आधा घंटा 1 घंटा ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, और फिर मैं उसी को दिखाने के लिए 2.5 3 घंटे बोलता हूँ और बीच में पानी तक नहीं पीता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह प्यास भी नहीं लगती है, चूँकि जो बोलता चला जाता है दीन की बातें, अल्लाह ताला रूहानी ताकत अता कर देता है। आपको भी ताकत चाहिए तो सजदा बढ़ा दीजिए, आपको भी ताकत चाहिए तो डेली पहले कुरान पढ़िए आधा घंटा, फिर दुकान खोलिए, उसके बाद फिर देखिए कि दिन भर आपका चेहरा कैसे गुलाब की तरह खिला रहता है। अगर रात भर सिनेमा देख के व्हाट्सएप और यूट्यूब चला के 2 घंटा सो के दुकान में आके बैठिएगा 11 बजे, चेहरे पे नहुसत, दिल में नहुसत, कारोबार में नहुसत, लड़ाई झगड़ा गुस्सा, ये सारी चीज़ें जो आज की पैदावार है, जो आज सबों को हो रहा है, चेहरा गुस्से में आना, तमतमाना, किसी से बात नहीं करना, यह सिर्फ इसीलिए है कि वो गंदी चीज़ों की नहुसत है। वरना 1000 दूध पढ़ के आप दुकान में बैठिए, फजर की नमाज पढ़ने के बाद दुकान में बैठिए, बिके ना बिके अंदर से वो एनर्जी महसूस होगी कि 1 करोड़ की बिक्री हो जाए तो भी फिरौन नहीं बनेंगे, और 1 टाका की बिक्री ना हो तो भी आप अल्लाह को गाली देने वाला नहीं बनेंगे। बिक गई, बिक्री हो गई तो अल्लाह का फजल है, अब बिक्री नहीं हुई तो सब्र है, तो यह सब्र भी बढ़ा देता है और शुक्र भी बंदे को बढ़ा देता है। ये चीज़ें मिलती हैं आलिमों की सोहबत, नेक लोगों की महफिलों में रहने से। एक शख्स थे हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम, अल्लामा मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े आलिम, पूरी बुखारी शरीफ ज़बानी आती उनको। हम लोगों को बुखारी शरीफ के बारे में कोई बोले कि 10 हदीस सुनाइए तो नोच नाच करके सर के बाल तब 10 हदीस सुना पाएंगे, लेकिन इमाम बुखारी को कई लाख अहादीस याद थी, उनमें से छांट के लगभग 2,500 से 3,000 अहादीस को बुखारी शरीफ में जमा किया है। अब बुखारी शरीफ कुरान के बाद सबसे अफजल किताब है। बुखारी शरीफ मुसीबतों के हंगामे के टाइम बुखारी शरीफ का विर्द करना चाहिए, दुआएं कबूल होती हैं। अब वह बुखारी किसी को ज़बानी याद होती, इतनी मोटी किताब है 2 जिल्दों में, लेकिन एक बड़े आलिम हिंदुस्तान के थे अल्लामा मुहद्दिस सूरती, उनके बारे में आया कि उनको पूरी बुखारी शरीफ ज़बानी याद थी। अल्लाह समद। और हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुहद्दिस आज़म हिंद मदनी मियाँ के बाप, वो उनके उस्ताद थे मुहद्दिस सूरती, यानी जिनका शागिर्द मुहद्दिस आज़म हिंद हो तो उनके उस्ताद का क्या अलग होगा। ये दिल्ली का लुच्चा लवरा, ये साहब इलाहाबाद का सरावा में अब किसी दूसरों के पैसे पे जीने वाला, पैसा ले करके उनकी मुवाफकत में बोली बोलने वाला, ये पैसा खोर क्या जाने गए। मुजाहिद मिल्लत ने बोला हरमैन के इमाम वहाबी हैं, उनके पीछे नमाज नहीं होगी, मगर ये 2-4 लुच्चे लबरे छोकरे किस्म के लोग बैठ के आज यही वकालत कर रहे हैं कि नमाज हो जाएगी, नमाज नहीं पढ़ेंगे तो तर्के जमात का गुनाह हो जाएगा। यानी उस वहाबी को खींच तान करके ये मुसलमान और सही इमाम साबित करने पे लगे हुए हैं। अब जाहिर है जैसा माल होगा वैसा ही माल जबान से निकलेगा। इश्क़ रिसालत की बात आला हजरत बुजुर्ग हैं, कुतुब उलशाद हैं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलिम हैं, उनके फतवा में है कि वहाबी देवबंदी नजदी गुस्ताख रसूल इस्लाम से खारिज हैं, उनके पीछे नमाज नहीं होगी, मगर ये अलग से इसको बना करके वहाँ के इमाम को हक साबित करने पे लगे हुए हैं, दिन रात उसी में लगे हुए हैं। जैसा माल उसी तरह का ख्याल उसका पैदा होता जा रहा है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि आप सरकार ताजुश शरिया का दामन आपके हाथ में है, आला हजरत के मसलक का दामन आपके हाथ में है, वरना ज्यादा जान नाचे कूदे इधर उधर देखा तो इमाम हरम तो अपनी जगह रहेगा, आपका ईमान ही लुट जाएगा। तो इमाम हरम को साबित करने चले हैं सही और अपना ही ईमान लुट जाएगा। इसलिए जो बुजुर्गों का अकीदा उसको सीने से लगा ले और ज्यादा मकान और दुकान की शोहरत और कारखाने और कारोबार की शोहरत में और बरेली को हटा करके अपना मरकज बनाने की कोशिश मत कर। 25 साल से तो हाथ पैर मार रहा है और खूब इधर उधर कर रहा है, 2-4 लोगों को चोरी छुपे उल्लू बनाने के अलावा और कौन सा काम क्या है सिवाय सुन्नियों का दिमाग खराब करके। आने वाला वक्त आ रहा है सुन्नियों की निगाहों से गिर जाएगा और फिर तुझे या तो वहाबियत का ऐलान करना पड़ेगा या तुम्हें भी उन जाहिल खानकाहों की तरह जो आला हजरत के मसलक का फॉलोवर नहीं है उसकी तरह मान के ना वहाबी देवबंदी का रहेगा, वहां तुम मुनाफिक बोलेगा और सुन्नियों की निगाहों से भी गिर जाएगा, पेंडुलम की तरह झूलता रहेगा। जैसे इमारतें जैसे खानकाह मुजीबिया वाला पेंडुलम की तरह झूल रहा है वैसे तू भी झूलेगा। अभी आम तौर पर तेरी मुखालफत का ऐलान भी पूरे हिंदुस्तान में नहीं हुआ है, पब्लिक नहीं जान रही है, एक बेशुमार फितने सारे मौजूद हैं और अगर अभी भी जबान तेरी बंद नहीं हुई तो बेशुमार फितनों में से एक फितने का तेरा भी इजाफा होगा। फिर सारे सुन्नी तेरा सोशल बायकाट करेंगे
और तू मिलाद फातिहा के नाम पे आला हजरत के गुलामों को तू बहका नहीं पाएगा। अभी तो बहुत सारे लोगों को तू फंसा लेता है, आला हजरत का नाम लेकर के, फतवा रजिया का नाम लेकर के फंसा देता है, और आने वाले दिन में तू बेनकाब हो जाएगा। जो हाल नदवियों का हुआ है वो हाल तुम्हारा भी हो जाएगा। ये चले हैं रजा के खिलाफ बोलने के लिए। मुहद्दिस सूरती, मुहद्दिस आज़म हिंद के उस्ताद, जबरदस्त हिंदुस्तान के बड़े आलिम, उनसे पूछो रजा किसका नाम है। जो हर जुमेरात को पीलीभीत से बरेली आते थे, आला हजरत के पास एक दिन एक रात गुजारते थे, उनसे इल्मी फैजान से मालामाल होते थे, और फिर यहाँ से वापस पीलीभीत जाते थे। आज से 100 साल पहले, 100 साल पहले उस जमाने में एक ट्रेन चलती थी। ये मोहब्बत आला हजरत थी। किसी ने उनसे पूछा, हुजूर आप मुहद्दिस हैं, बुखारी शरीफ अजबर है, उसके बावजूद जब दर्स बुखारी देते हैं तो रजा का नाम लेते हैं, और जब आप जुम्मा का खिताब करते हैं तो आला हजरत का नाम लेते हैं, और जब आप अपनी निजी बैठक में शागिर्दों के दरमियान रहते हैं तो रजा का नाम। आपके पीरो मुर्शिद तो फजल रहमान गंज मुरादाबादी जो साहिब करामत बुजुर्ग हैं, उनका नाम आप नहीं लेते, और आला हजरत आपके पीर नहीं है। आपके पीर है फजल रहमान गंज मुरादाबादी, बहुत बाकमाल बाकरामत बुजुर्ग है, उनका चर्चा नहीं करते हैं। हर मुरीद अपने पीर का चर्चा करता है, लेकिन चर्चा आप रजा का दरसगाह में करते हैं, खिताब में करते हैं, सफर में करते हैं, हजर में करते हैं, 5 आदमी के बीच करते हैं, 50 आदमी के बीच करते हैं। आखिर इसमें क्या मतलब है। आपके उस्ताद मौलाना इसहाक मुहश्शी बुखारी हैं, जिन्होंने बुखारी शरीफ का हाशिया चढ़ाया है, वो इतने बड़े उस्ताद आपके हैं, उतने बड़े साहिब इल्म हैं, उसका नाम आप नहीं लेते हैं कि मेरे उस्ताद मौलाना इसहाक है, इतने बड़े आलिम हैं। आप जब भी चर्चा हो, रजा का चर्चा हो, दरसगाह में उनका चर्चा, दरस बुखारी में उनका चर्चा, सफर में चर्चा, खिताब में चर्चा, महफिलों में उनका चर्चा, आखिर क्या बात है। वही सवाल जो आज दूसरे लोग करते हैं कि रजा का सलाम, रजा का कलाम, रजा का फतवा, रजा की बात, मुहर्रम में रजा का नाम, 12वीं शरीफ के जुलूस में रजा का नाम, मदरसों में रजा का नाम, ये मसलके रजा, मसलके आला हजरत, ये क्या है। मसलके आला हजरत मसलके इमाम आजम है, और तुम भी मसलके इमाम आजम के फॉलोवर कहते हो, और आला हजरत से चिढ़ते हो, और नबी के इल्म को जानवर चौपाए से मिला करके मुर्तकिबे तौहीन मुस्तफा हो के इस्लाम से निकल गए हो तुम। इसलिए तुम भी यही बात बोलते हो, रजा रजा रजा, ये क्या चीज है रजा रजा। सुन लो, यही सवाल मुहद्दिस सूरती से किसी ने किया था। खिताब में रजा, दरस बुखारी में रजा, दूसरी घंटियों में रजा, सफर में रजा, हजर में रजा, जुमा के खुतबे में रजा, निकाह की तकरीर में रजा, हर वक्त जबान पे रजा का जिक्र क्यों रहता है, जबकि आपके उस्ताद मौलाना इसहाक, आपकी पीर मौलाना फजल रहमान। तो अब उनका जवाब सुनिए, वही जवाब आप भी लीजिए। गरीब नवाज हैं हिंदुस्तान के मोहसिन दाइये कबीर, लेकिन इस सदी में जितने फितने पैदा हुए इस्लाम के नाम पे, अंग्रेजों के नमक खारों ने अंग्रेजों को खुश करने के लिए जो मुस्तफा की तौहीन अपनी किताबों में लिखी, एक तरफ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जिसने नबी होने का ऐलान किया, और दूसरी तरफ ये दूसरे लोगों ने जिसने उसको शह दिया, उसके लिए ऐसे अल्फाज और जुमले इस्तेमाल किए कि खात्मे पैगंबरा के बाद अगर कोई दूसरा नबी आ भी जाए तो भी उनकी खात्मियत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुमने एक जमीन दे दी, गुलाम अहमद कादियानी ने बोला कि हाँ हम नबी बन के आ गए, तुमने ही जमीन दिया, तुमने ही उसको शह दिया, तुमने ही उसको मवाद दिया, और वह बोल उठा के नबी बन के आ गए। तो उसका रद्द हिंदुस्तान में किसने किया, उसका ताक़ुब, उसका पीछा किसने किया, उसके खिलाफ किसने बोला। तो इस जमाने में बेशुमार फितनों का मुकाबला करने के लिए, ईमान बचाने के लिए रजा की मोहब्बत कितनी जरूरी है, मुहद्दिस सूरती से सुनिए। और जो आज रजा से बिदक गए, रजा से हट गए, या तो वह राफिजी बन जाता है, या वह शिया बन के सहाबा का गुस्ताख बन जाता है, या वह खारजी बन के वहाबी नजदी दियोबंदी बन के वह गुस्ताखों की झोली में चला जाता है। तो इस दौर में रजा की मोहब्बत गौस और ख्वाजा और सरकार दो जहां की मोहब्बत के करीब होने की दलील है। रजा की मोहब्बत जो उनसे करीब हुआ वह ख्वाजा गरीब नवाज से करीब हुआ, गौस आजम से करीब हुआ, सरकार दो जहां से करीब हुआ, खुदा की मार्फत से करीब हुआ। जो रजा से बिदका, उससे चिढ़ा, उनके नाम से चेहरा का जोग्राफिया बदला। अगर दिल का चोर कभी कभी जबान पे आ जाएगा और या तो राफिजियत की बोली बोलेगा या खारजियत की बोली बोलेगा। एक मौलवी था पटना में, सुन्नियों ने उसको स्टेज पे लाया और सुन्नियों के जलसे में तकरीर करने लगा, बहसते खतीब वो आने जाने लगा, मगर अंदर में रजा का बुग़्ज़ छुपा था और अपने बाप दादाओं की अजमत के नशे में चूर रहता था। मेरी खानका बड़ी है, ये पठान कब से अल्लाह के वली हो गए। और दिल में एक चोर बैठा था, आप बज़ाहिर स्टेज पे जाने और नजराने लेने और शानदार गजा खाने और वाहवाही इज्जत लूटने के लिए रजा का नाम जबान पे लेता था और चर्चा करता था। मगर कब तक ये मुनाफिकत और ये दोहलापन छुपा रहेगा। और अभी जब साइड हुआ तो जबान से वो मुनाफिकत निकल गई। जो बोली खैर मुखल्लिद बोलता था, अहले हदीस बोलता था कि 3 तलाक
तलाक एक तलाक के मानंद है। यही बोली वो मुली साहब भी बोलने लगा, वो कॉलेज का प्रोफेसर भी बोलने लगा, उसके दारुल इफ्ता का मुफ्ती ये फतवा लिखने लगा कि एक मजलिस में 3 तलाक कोई दे वो एक तलाक ही मानी जाएगी, जो फतवा जमहूर उलमा का जिसका इत्तेफाक है। अक्सर उलमा आज 1400 साल के मुत्तफिक है कि 3 तलाक ही है, लेकिन ये गैर मुक़ल्लिदों की बोली बोलकर आज उनकी झोली में बैठ गया है। यही हश्र होगा, जो रज़ा का बुग़्ज़ रखेगा दिल में वो कभी भी मुस्तफ़ा का मुखलिस नहीं हो पाएगा, कभी भी गौस का मुखलिस नहीं हो पाएगा, या तो खारजी बनेगा या राफिजी बनेगा। और रज़ा के नाम से जिसका चेहरा मुसर्रत और खुशी से खिल उठा, उसके ईमान की गवाही दीजिए कि ये शख्स मुस्तफ़ा का वफादार होना पड़ेगा। या इस दौर में फितना से बचने के लिए रज़ा की मोहब्बत जरूरी है। मुहद्दिस सूरती आज का मौलवी नहीं, ये आला हजरत के अहद का आलिम है, उनका हम अस्र मौलवी है। ये आज का कम इल्म रखने वाला मौलवी क्या जाने रज़ा किसका नाम है। बुखारी शरीफ का याद करने वाला, असबर करने वाला वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुहद्दिस, जब उनसे सवाल हुआ कि महफिल में, दरसगाह में, दरसे बुखारी में, सफर में, हजर में रज़ा का नाम आपकी जबान पे क्यों रहता है, उनका जवाब सुनिए, उनका जवाब नोट कीजिए। वो कहते हैं कि सबसे बड़ी दौलत वह दरसे बुखारी नहीं है जो मैंने अपने उस्ताद मौलाना इसहाक से हासिल किया है। सबसे बड़ी दौलत वह पीरी मुरीदी नहीं है जो मैंने मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी से हासिल की है, बैत हासिल की है। यह बैते तौबा, बैते बरकत है। सबसे बड़ी नेमत वो नहीं है, सबसे बड़ी नेमत वह लिखना पढ़ना नहीं है जो मैंने अपने उस्ताद से सीखा है। सबसे बड़ी नेमत ईमान और इश्क रिसालत है जो मैंने अहमद रजा खान से सीखा है। तो जो सबसे बड़ी दौलत जिनकी महफिल से मिले उसका चर्चा तो होना ही चाहिए। मुहद्दिस सूरती आला हजरत की फिक्र को सबसे बड़ी दौलत वह कहते हैं कि मुझको मदीने वाले मुस्तफा से करीब करने वाले का नाम इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी है। जो अहमद रजा से करीब होता है वह किसी मकान, महल, खानदान से करीब नहीं होता, वह सबसे पहले मुस्तफा जाने रहमत से करीब हो जाता। और यही जाने ईमान है, और यही असल ईमान है, यही कंज़े ईमान है, यही असल ईमान है जान इश्क मुस्तफा। रोज फजू करे खुदा जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों। जाने ईमान है मुस्तफा की जात, वह जाने इश्क है मुस्तफा की जात, रूह कायनात है मुस्तफा की जात, कंज़े ईमान है मुस्तफा की जात, जान है इश्क मुस्तफा। रोज फजू करे खुदा जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों। आला हजरत ने कहा कि अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। यही पैगाम आला हजरत का है, मुस्तफ़ा से करीब होना, मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ना, मुस्तफ़ा के गुस्ताखों से दोस्ती नहीं करना, चाहे वह समधी हो या बेटा हो या दामाद हो। अगर नबी का गुस्ताख है तो दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देना है। और जब तक यह बात नहीं पैदा होगी तो सांप का भी मुंह चूमिएगा, सपेरा का भी मुंह चूमिएगा। हाँ, हम तो हर जगह नमाज पढ़ लेते हैं, यहाँ भी पढ़ लेते हैं, वहाँ भी पढ़ लेते हैं, और बिल्कुल मुनाफिक का सबूत पेश करते हैं। चाहे वो नबी को गाली दे फिर भी हमारा है, और नबी का वफादार हो फिर भी हमारा है। रज़ा से करीब होते जाएंगे, इश्क रिसालत की दुनिया आबाद होती रहेगी, ईमान बचता रहेगा। और रज़ा से जहाँ दूर हुए मुमकिन है कि दीन, ईमान, अकीदा सब लूट जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को सरकार आला हजरत से सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। ये देखिए बहादुरगंज में ऐसा भी होता है कि यहाँ तो सिर्फ नात पढ़ने वाले को नवाजा जाता है, और यहाँ खिताब करने वाले को 2 घंटे तक मैं तकरीर किया हूँ, और 2 घंटे में कुछ नहीं हुआ। अभी हमारे साहब दामाद बाबू ने जो नजराना दिया, चूँकि मचल गया आला हजरत के नाम पे, यह इस बात की दलील है कि इनके दिल में इश्क़ रज़ा की आग सुलग रही है, और ये चाहता है कि दीन ईमान महफूज रखने के लिए आला हजरत का नाम ज़रूरी है, सुबह शाम उनका चर्चा ज़रूरी है, उनका सलाम पढ़ना ज़रूरी है। यहाँ तक एक देवबंदी मौलवी बोला कि मैं सलाम पढ़ता था नबी के बारगाह में, लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम जब मैं पढ़ा तो एक नई कैफियत का एहसास होने लगा। चूँकि कलाकारी तकरीर की और तहरीर की अलग चीज़ है, और आला हजरत ने कलाकारी नहीं की है बल्कि दिल को निकाल के रख दिया है।
आला हजरत के दिल की आवाज़ है। यही वजह है कि उनका कलाम मकबूल अनाम हो गया। 100 साल से वही नात पढ़ी जा रही है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरी उम्र हो रही है, मेरी उम्र हो रही कितनी, 53 ईयर्स, 53 साल। बहुत से लोग सोचते होंगे 60-65 साल, मगर नहीं, 60-65 नहीं, 53 ईयर्स है मेरी उम्र, 53 ईयर्स। बहुत सारे लोगों को लगता है कि 50 से नीचे होंगे। खैर, अपना अपना कयास है उसका, जो सोचे, जो जिस तरह का सोचता है उसी तरह की सोच रखता है। 53 ईयर्स, बचपन में 3 साल 4 साल से चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ये नाते हम लोग बचपन से पढ़ते। 53 में 3 छाड़ दें, 50 साल से तो मैं सुन रहा हूँ और मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन आज तक ऐसा नहीं लगा कि कितना पढ़ेंगे। 50 साल से पढ़ रहे हैं, अब इसका असर कम हो गया, अब यानी बहुत पढ़ लिया, अब ये फीका हो गया। नहीं, बल्कि आज भी कोई अच्छी आवाज़ वाला पढ़ता है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, तो दिल खिल जाता है, सीना मुस्कुराने लगता है, वजूद में झुरझुरी पैदा हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे पहली बार ये कलाम सुन रहा हो। चूँकि ये किसी कलाकार का कलाम नहीं है, आशिक़े रसूल का कलाम है। सुभान अल्लाह, इस जुमले को याद कीजिए, किसी कलाकार का कलाम नहीं है, बल्कि आशिक़े रसूल का कलाम। गालिब कलाकार का नाम है, ज़ौक़ कलाकार का नाम है, इक़बाल वो भी एक कलाकार का ही नाम है, मगर आला हजरत एक आशिक़ रसूल का नाम है। और इक़बाल की ज़बानी कुछ लोग और उनकी ज़िंदगी में भी इश्क़ रसालत का जलवा बहुत का रंग बड़ा गहरा मिलता है। यही वजह है कि इक़बाल के कलाम में भी चाशनी मौजूद है। तो मुके साहब आका अलैहिस्सलाम की शान में जो उन्होंने अशार लिखे हैं, आज भी 70-80 साल के बाद भी उसके कलाम में दम है। और फिर कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, यह जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। उनके मोहल्ले में मैं तकरीर करके आया हूँ। इन्होंने कि पाकिस्तान गए थे, तो पाकिस्तान में कराची वराची यहाँ वहाँ नहीं गया था, डॉक्टर इक़बाल के मोहल्ले में खिताब करने गया था। वो अभी बहुत बड़े कलाकार थे, बहुत बड़े आशिक़ रसूल भी थे वो। उनके कलम की जोलानी, मगर आला हजरत के कलाम जब आए हैं तो इक़बाल, ज़ौक़, गालिब सब के कलाम पीछे हो गए और इश्क़ रसूल में डूबा हुआ रज़ा का कलाम आलमगीर हो गया। अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक की हर मस्जिदों में मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम पढ़ा जाता है। तो आज भी कोई पढ़ता है तो आँख से आंसू के कतरे रवा हो जाते हैं। इसलिए उस आशिक से इश्क कीजिए, मोहब्बत कीजिए। वो मोहब्बत रायगा नहीं जाएगी, वो मोहब्बत सीधे जन्नत लेके चली जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को आला हज़रत से सच्ची मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जो उनका पैगाम है उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर आशिक़ रसूल 10,000 कमाता है तो और गुस्ताख़ रसूल 10 लाख महीना कमाता है, तो अल्लाह ताला हमें अपनी बेटी को 10 लाख कमाने वाले गुस्ताख़ को नहीं, 10,000 कमाने वाले आशिक़ रसूल को देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये बात मैंने इसलिए कह दी चूँकि आजकल पैसा का गुलाम सब हो रहा है। लड़का सलाम पढ़े ना पढ़े, है ना मुसलमान, है ना कलमा पढ़ने वाला, है ना, दे दो। उसके बाद पता चला कि ये खुद बरेली जाने वाला अब नदवा का सफ़र कर रहा है। इनके सारे ख़ानदान का ईमान दीन सब लूट गया। पहले बोला था उसको अपना बना लेंगे, अपना क्या बनाएगा, तुम्हारे पास ताकत ही क्या है। वो तो दिन रात उसी नशे में पिला हुआ है कि फ्री में इसकी बेटी लेके पूरे ख़ानदान को हम गुस्ताख बना दें। तुम्हारे पास मस्जिद जाने का हौसला नहीं है तो किसी के ईमान को बचाने की हिम्मत कहाँ से लाएगा। उसके पास एक मिशन है, इसलिए उनको लाने के चक्कर में सारे ख़ानदान को डूबा मत दो। जो आशिक़ रसूल अगर मिट्टी के घर में रहता है तो गुस्ताख़ रसूल के सोने के घर से इनका घर बेहतर है। अल्लाह ताला हम सबों को आशिक़ों की कद्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।